الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله ما خاب من ناداك الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله ما خاب من ناداك جايلك وفي قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی کیو انٹرنیشنل میں خوش آمدید اور میں ہوں حافظ عبدالرزاق. آج ہم یہ پاکستانی پیٹرول پی ایس او کمپنی پر حاضر ہوئے ہیں اور یہاں ہم آنے والوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق 3 سوال کریں گے. پیٹرول بہت مہنگا ہے, ہم نے سوچا کہ جو ان 3 کے جواب دے گا یا 3 میں سے 2 کی بھی جواب دے دے گا تو ہم اس کی گاڑی میں کچھ نہ کچھ پیٹرول ڈلوائیں گے. پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں کیا رشتہ داری تھی, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بیت المقدس خلفائے اربعہ میں سے کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کل یکم محرم الحرام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون تھا اور اس کا مزار اس وقت کس ملک میں ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں, لوگوں سے سوال کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو اس حوالے سے معلومات ہے یا نہیں. آئے چلتے ہیں. نام ہے پیٹرول سستا ہے مہنگا ہے؟ مہنگا ہے. اگر آپ ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دے دیں تو ہم آپ کا کچھ پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں. ویسے میں کتنے کا ڈلوانے ہیں؟ 200 کا پیٹرول میں ڈلوا دوں گا. 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں کیا رشتہ داری تھی؟ حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان کیا رشتہ داری تھی آپس میں؟ نہیں پتا. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ بیت المقدس کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا؟ 4 خلیفہ ہیں نا خلفائے اربعہ, کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. یہ جواب آپ کا درست ہے. تیسرا سوال ہے کہ حضرت عمر, کل یکم محرم الحرام ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا اور اس کا مزار کس ملک میں ہے؟ یہ پتا ہے اس کا مزار کس ملک میں ہے؟ یہ بھی نہیں پتا. اگر آپ 2 کا بھی جواب دے دیتے نا ہم آپ کا پیٹرول ڈلوا دیتے. چلو کوئی بات نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بھائی کا؟ محمد شاذب. جی محمد شاذب. شاذب بھائی, کتنے کا پیٹرول ڈلوانے ہیں؟ 200 کا. 200 کا پیٹرول میں ڈلوا دوں گا. 3 سوالوں کے جواب دے دو, یا 3 میں سے 2 بھی صحیح ہو گئے تو 200 کا پیٹرول میری طرف سے. صحیح ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں کیا رشتہ داری تھی؟ معلوم نہیں. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ بیت المقدس کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا؟ دینی کے معاملے میں زیادہ معلومات نہیں. یہ بھی معلومات نہیں. ویسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا تھا, اور حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان سسر اور داماد کا رشتہ تھا. میں بتا رہا ہوں, سسر اور داماد کا رشتہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے داماد. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد اظہر. کتنے کا پیٹرول ڈلوانا ہے؟ 150 روپے. 150 کا پیٹرول میں ڈلوا دوں گا. صحیح ہے. 3 سوال کروں گا, 3 کے جواب دے دیں یا 2 کے جواب دے دیں, پیٹرول میری طرف سے. ایک سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں کیا رشتہ داری تھی؟ عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا رشتہ داری تھی؟ نہیں, بڑی گہری اور اہم رشتہ داری تھی. آپ شادی شدہ ہیں؟ کیا رشتہ داری تھی؟ حضرت عمر اور حضرت علی کے درمیان. داماد تھے. کون کس کا داماد تھا؟ حضرت علی کے داماد تھے حضرت عمر. حضرت عمر جو تھے وہ حضرت علی کے داماد تھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بیت المقدس کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا؟ 4 خلیفہ ہیں نا خلفائے اربعہ, کس خلیفہ کے دور میں فتح ہوا بیت المقدس؟ نہیں پتا. چلو تیسرا سوال. کل یکم محرم الحرام ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا اور اس کا مزار کس ملک میں ہے؟ عراق میں. کس نے شہید کیا اور اس کا مزار کس ملک میں؟ شہید کس نے کیا؟ یزید نے. نہیں, مزار نہیں.
मज़ार उनका जो है ईरान में है। जिसने शहीद किया था उसका मज़ार ईरान में है। नहीं ना, हज़रत शहीद किया था उनकी बोलते हैं, जिसने शहीद किया था उनका मज़ार कहाँ है? जिसने शहीद किया था हजरत उमर को उसका मज़ार कहाँ पर है, उसकी कब्र कहाँ पर है? नहीं पता जी। एक सवाल का जवाब दिया। वैसे हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को अबू लुलू नामी एक शख्स ने शहीद किया था और उसका मज़ार और उसकी कब्र ईरान में है, और बैतुल मुक़द्दस हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में फतह हुआ था। याद रखिएगा, हो सकता है फिर बाद में कोई पेट्रोल डलवा दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने का पेट्रोल डलवाने आए हो? एलपीजी नहीं डलवा रहे, क्यों? मिल रही नहीं है। 200 का पेट्रोल मैं डलवा दूंगा, 3 सवालों का जवाब दे दो, या 2 का जवाब दे दो, 200 का पेट्रोल मैं डलवाऊंगा। सही है? चलो मैं पूछता हूँ ना आप, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान आपस में क्या रिश्तेदारी थी? हजरत अली और हजरत उमर के दरमियान आपस में क्या रिश्तेदारी थी? नहीं पता? नहीं पता? हजरत अली जो थे हजरत उमर के ससुर थे, हजरत उमर दामाद थे। तो सवाल ये है कि हजरत कल यकम मुहर्रमुल हराम है ना, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। हजरत उमर को किसने शहीद किया था, उसका मज़ार कहाँ पर है? मदीने पाक। जिसने शहीद किया था, जिसने कत्ल किया था हजरत उमर को, उसका मज़ार कहाँ है, उसकी कब्र कहाँ है? ये भी नहीं पता। उसकी कब्र ईरान में है, जिसने हजरत उमर को शहीद किया था। पता हुआ कुरान पढ़े हुए नहीं पता। हजरत उमर के दौर में पता हुआ। सही है? कितने का पेट्रोल डलवाने हैं? पेट्रोल 200 का। 200 का पेट्रोल मैं डलवा देता हूँ। जवाब सही दे देना, लेकिन सही है? अगर जवाब सही हुआ तो पेट्रोल मेरी तरफ से। हजरत अली और हजरत उमर के दरमियान आपस में क्या रिश्तेदारी थी? हजरत अली रिश्तेदारी थी। क्या रिश्तेदारी थी? खुलफा राशिदीन है। अली जी, आपस में रिश्तेदारी क्या थी? अंकल के बेटे थे। आप शादीशुदा हैं? आप शादी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि बैतुल मुक़द्दस किस खलीफा के दौर में फतह हुआ? हजरत उमर रजी अल्लाह। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु। तो तीसरा सवाल ये है, कल यकम मुहर्रमुल हराम है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को किसने कत्ल किया था और उस कातिल की कब्र किस मुल्क में है? ये पता है ये पता है उसकी कब्र किस मुल्क में है? अबू लोलो फिरोज ने किया। हाँ सही है। और उसकी कब्र किस मुल्क में है? ये सेंट्रल एशिया में है, कोई शहर है। कौन सा मुल्क है? इराक। चले 3 ऑप्शन मैं देता हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। इराक, ईरान या मिस्र? मिस्र। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के कातिल की कब्र ईरान में है। आपने फिर भी काफी जवाब दिए, इसलिए हम पेट्रोल आपका डलवा के देंगे। नहीं डलवाएंगे यार, ऐसी क्या बात। इनकी गाड़ी में 200 का पेट्रोल हमारी तरफ से डालो। 200 का पेट्रोल। احساس واخدني لفوق ما يتوصفش بكتابة جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 3 सवालों का जवाब दो, आधे पैसे हमारी तरफ से, 500 रुपए पेट्रोल के हमारी तरफ से। जी बोले। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान आपस में क्या रिश्तेदारी थी? नहीं पता? नहीं। हजरत बैतुल मुक़द्दस किस खलीफा के दौर में फतह हुआ? ये भी इल्म नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का कातिल कौन था और उसकी कब्र किस मुल्क में? ये भी इल्म नहीं है। ये भी इल्म नहीं है। कितने का पेट्रोल डलवाने हैं? जी हम तो 100-150 का डलवा। 200 रुपए का पेट्रोल में डलवा दूंगा। 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि हजरत अली और हजरत उमर के दरमियान आपस में क्या रिश्तेदारी थी? रिश्तेदारी दोनों खलीफा थे। रिश्तेदारी क्या थी? मेरे ख्याल से हजरत उमर की जो शादी है ना, वो मौला अली के घर से हुई थी। हाँ, जवाब सही है आपका। अच्छा, दूसरा सवाल ये, बैतुल मुक़द्दस किस खलीफा के दौर में फतह हुआ? क्या चीज? बैतुल मुक़द्दस किस खलीफा के दौर में फतह हुआ? हजरत उमर के दौर। हजरत उमर के दौर में। तीसरा सवाल, कल यकम मुहर्रमुल हराम है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है।
हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का कातिल कौन था और उसकी कब्र किस मुल्क में? कातिल की कब्र, कातिल की कब्र, कातिल की कब्र का नहीं पता, हजरत उमर की कब्र का वो पता तो है। सबको पता है। चलो, 200 का पेट्रोल हमारी तरफ से डाल दो इनके साथ। 2 सवालों के जवाब आपने दुरुस्त दिए, 200 का पेट्रोल हमारी तरफ से। 200 का डाल दो, 200 का। जहीर भाई, हमने 2 बंदों को पेट्रोल डलवा के दिया है सही जवाब पर। आप कितने का पेट्रोल डलवाने आए हो? 50 रुपए का। 100 रुपए का पेट्रोल हम डलवा के देंगे। 3 सवाल हैं। हजरत अली और हजरत उमर के दरमियान क्या रिश्तेदारी थी आपस में? नहीं पता? अच्छा चलो, दूसरे सवाल का जवाब दे दो। बैतुल मुकद्दस किस खलीफा के दौर में फतह हुआ? बैतुल मुकद्दस किस खलीफा के दौर में फतह हुआ, पता है? ये भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। कितने का पेट्रोल डलवाना है? बहुत महंगा हो रहा है पेट्रोल। 300 रुपए का। 300 का पेट्रोल मैं डलवा दूंगा। 3 सवालों के जवाब दे दें आप। हाँ हाँ, दोनों मिलके दे दें। हजरत उमर और हजरत अली के दरमियान आपस में क्या रिश्तेदारी थी? हजरत उमर और हजरत अली के दरमियान आपस में क्या रिश्तेदारी थी? दूसरा सेकंड पूछें। बैतुल मुकद्दस किस खलीफा के दौर में फतह हुआ? थर्ड पूछें। हजरत कल यकम मुहर्रमुल हराम में हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को किसने कत्ल किया और उस कातिल की कब्र किस मुल्क में? तीनों के जवाब याद नहीं है। 300 का पेट्रोल रह गया, वरना हम डलवा देते। खैर है ये बैतुल मुकद्दस हजरत उमर के दौर में फतह हुआ और हजरत अली और हजरत उमर के दरमियान ससुर और दामाद की रिश्तेदारी थी। हजरत उमर दामाद थे हजरत अली के, और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के जो कातिल है ना, उसकी कब्र ईरान में है। पता चल गया आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? भाई भाई कितने का पेट्रोल डलवाने हैं? पेट्रोल तो मैं ज्यादा का डलवाने आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ से अभी कम डलवाऊंगा। कितने का डलवाएंगे? 150 का। 150 का डलवाएंगे। 200 का हम डलवा के देंगे आपको। 3 सवाल हैं, 2 के भी जवाब दे दिए। 200 का पेट्रोल। पहला सवाल ये है, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर के दरमियान आपस में क्या रिश्तेदारी थी? रिश्तेदारी क्या थी आपस में? रिश्तेदारी पता नहीं, बड़ी अहम रिश्तेदारी थी। साबित है ना ये तो आप। अभी तो थे। रिश्तेदारी बड़ी अहम थी, और ऐसी रिश्तेदारी एक ही दफा बनती है जिंदगी में। ये मुझे आइडिया नहीं है। चलो दूसरा सवाल ट्राई करते हैं। बैतुल मुकद्दस किस खलीफा के दौर में फतह हुआ? हजरत उमर के। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में। बिल्कुल सही जवाब। कल यकम मुहर्रमुल हराम है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को किसने कत्ल किया और उस कातिल की कब्र कहाँ पर है, किस मुल्क में? यार ये पता नहीं। ये भी नहीं पता। अबू लुलू नामी एक शख्स ने कत्ल किया था और उसकी कब्र ईरान में। अच्छा। और हजरत उमर और हजरत अली के दरमियान जो है ना, ससुर और दामाद की रिश्तेदारी थी। हजरत उमर हजरत अली के दामाद थे। उम्मे कुलसूम नामी जो बेटी थी हजरत अली की, वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के निकाह में थी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। 300 रुपए का। 300 का पेट्रोल मैं डलवा दूंगा। 3 सवालों के जवाब होंगे। अच्छा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान आपस में क्या रिश्तेदारी थी? दामाद और वो क्या बात है? कौन दामाद था? हजरत उमर फारूक, वो हजरत अली, हजरत उमर फारूक। हजरत उमर दामाद थे और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ससुर थे। बैतुल मुकद्दस किस खलीफा के दौर में फतह हुआ? हजरत उमर फारूक। ये जवाब भी दुरुस्त है आपका। तीसरा सवाल, कल यकम मुहर्रमुल हराम है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को किसने कत्ल किया था और उस कातिल की कब्र किस मुल्क में? ये याद नहीं है, ये करता नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, और पेट्रोल भी डलवा देता हूँ। नहीं डलवाऊंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को अबू लुलू नामी एक शख्स ने कत्ल किया था और उसकी कब्र ईरान में। उसकी कब्र कहाँ है? ईरान में। ईरान में। भाई इन्होंने 2 सवालों का जवाब दुरुस्त दिया है। इनको 200 का पेट्रोल मेरी तरफ से डाल। 200 का पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम। कितने का पेट्रोल डलवाने आए?
150 रुपए का डलवा। 150 का, 200 का पेट्रोल मैं डलवाऊंगा। 3 सवालों के जवाब है, 3 में से 2 का भी जवाब दे दिया पेट्रोल मेरी तरफ से। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान आपस में क्या रिश्तेदारी थी? खलीफा तो थे, रिश्तेदारी क्या थी? रिश्तेदारी का नहीं पता। बैतुल मुकद्दस किस खलीफा के दौर में फतह हुआ? कंफर्म नहीं है, अभी नहीं पता। तीसरा सवाल ये है कि कल यकम मुहर्रम उल हराम है, हजरत उमर की शहादत का दिन है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को किसने कत्ल किया और उस कातिल की कब्र किस मुल्क में? ये भी नहीं पता। आपस में वैसे ससुर दामाद थे ये दोनों, हजरत अली और हजरत उमर आपस में ससुर दामाद थे। हजरत अली ससुर थे, हजरत उमर दामाद थे। बैतुल मुकद्दस हजरत उमर के दौर में फतह हुआ और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का जो कातिल था ना अबू लुलू, उसकी कब्र ईरान में है। ठीक है, आज हम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के हवाले से सवालात करने के लिए निकले थे। कल चूंकि यकम मुहर्रम उल हराम है, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना लोगों से मालूमात करें कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से मुताल्लिक उनको कुछ ज़रूरी मालूमात हैं या नहीं है। तो बुनियादी तौर पर हमने 3 सवाल किए थे, जैसे हमने शुरू में वीडियो में बताया भी। बाज़ लोगों ने तीनों के जवाब दिए, बाज़ लोगों ने आधे के जवाब दिए, बाज़ ने 2 के जवाब दिए और हमने कई लोगों को उसका इनाम भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और बाज़ इसमें शिया हजरात भी थे और उन्होंने बड़े तहम्मुल से हमारे सवालात सुने और उसका तहम्मुल से जवाब दिया। लेकिन ये है कि बहरहाल इस हवाले से हमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है कि हम सहाबा किराम से मुताल्लिक अच्छी और ज़रूरी मालूमात और सही और दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँचाएँ। उम्मीद है कि हमारा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।